Hello students, this is Vijay Lakshmi. First of all, I welcome you all on my channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. In today's video, I will teach you classified advertisement writing. As you all know that in the classes 11th and 12th CBSE schools, in the curriculum of CBSE for the classes 11th and 12th, there are 4 short writing skills in which there are notice writing, classified advertisement writing, display advertisement writing, poster making and invitation writing. Out of them, today I am going to teach you classified advertisement writing. Before proceeding, it is must to know what is the aim of advertisements. Advertisements are being written to attract the public's attention, okay, for the popularity of a product, okay. The companies draft the display advertisement for the popularity of their product and come to the classified advertisements. Classified advertisements are being published in the newspapers, magazines and many periodicals. Okay, these are called classified advertisements because of their classification and categorization. Clear? The classified advertisements are written under the specific columns, like there is one page in the newspaper, as we took the example of the Tribune newspaper. In that newspaper there is a specific page for classified advertisements. Okay, they further have their different columns like situation vacant, for sale, situation wanted, lost and found. Okay, so out of them today I am going to teach you how to write a classified advertisement under the column situation vacant. One thing that you have to keep in mind, एक बात जो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि जो classified advertisements होती हैं they must be brief. उसमें हमने ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता. We should not exceed the word limit. Okay? The word limit is about 50 words. हमने 50 words के अंदर अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है. मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स. इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी होती है मिनिमम वर्ड्स का यूज़ करके. ओके, और हमने कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज. ओके, सो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी सो लेंथी. It must not exceed 50 words limit. Okay, it must be simple in its wording. Clear? So let us learn how to write a classified advertisement. Okay, so specifically आज हम सीखने जा रहे हैं कि how to write an advertisement under the column situation vacant. तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? Number 1, the thing that to be kept in mind. The heading of the column should be in capital letters, in block letters. जो आपने कैपिटल आपकी एडवर्टाइजमेंट की जो हेडिंग है किस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप राइट कर रहे हो उसकी हेडिंग कैसे होनी चाहिए? कैपिटल लेटर्स में. जैसे कि मैंने सिचुएशन वैकेंट के देखो सभी जो लेटर्स हैं वो मैंने कैपिटल लिखे हैं. क्लियर? और कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? इन दिस एडवर्टाइजमेंट वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर जिसकी तरफ से वो एडवर्टाइजमेंट दी गई है उसका नेम राइट करना जरूरी है कि किसकी तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है. ओके, सिचुएशन वैकेंट का मीनिंग क्या है? कब इसके अंडर एडवर्टाइजमेंट लिखी जाएगी? अगर किसी कंपनी में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई वैकेंसी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है सो दैट द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ताकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब को करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकें. क्लियर? तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे उस स्कूल का, उस ऑर्गेनाइजेशन का. देयर आफ्टर वी हैव टू रिवील द वैकेंसी एंड नंबर ऑफ पोस्ट. उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि कौन से सब्जेक्ट की या किस डेजिग्नेशन की वैकेंसी है. रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ओके, या फिर कोई टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, ओके, कोई डॉक्टर की वैकेंसी है किसी हॉस्पिटल में. क्लियर? तो उस वैकेंसी का नेम लिखेंगे एंड अलोंग विद द नेम वी हैव टू मेंशन दैट हाउ मेनी, कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स हैं वैकेंट. 1 पोस्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर. क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू मेंशन
व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब वो जिस कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं अपनी इस पोस्ट को फिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। क्लियर। प्रेफरेंसेस, एज, जेंडर, लैंग्वेज एंड वी कैन ऐड हियर कंप्यूटर लिटरेसी एज वेल। ओके, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी कि उसकी एज, जैसे कई बार एज बार होता है कि दिस पोस्ट इज कैन बी द कैंडिडेट्स of about 34 years can apply for the post। ओके, तो अगर आपने एज लिमिट मेंशन करनी है, जेंडर आपको मेल एम्प्लॉय चाहिए या फीमेल चाहिए, आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, व्हाटएवर। ओके, उसके बाद सैलरी, इट इज़ मस्ट टू डिस्कस सैलरी ऑफर, आप कितनी सैलरी दोगे उसको, बिकॉज अगर आप ये सैलरी के बारे में यहाँ पे रेफरेंस नहीं दोगे तो कैंडिडेट के दिमाग में यही डाउट रहेगा कि पता नहीं सैलरी क्या होगी। ओके, तो सैलरी भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर। आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोसेस, यू हैव टू रिवील हियर, यू हैव टू टेल हियर कि हाउ द कैंडिडेट कैन अप्लाई, कैसा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू कब होगी, कैसे वो अप्लाई कर सकता है, ईमेल भेज सकता है या फिर उसको खुद जाके एप्लीकेशन दे के आनी पड़ेगी या फ़ोन करना पड़ेगा, व्हाटएवर। ओके, देन पुट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो एडवर्टाइजमेंट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा। क्लियर। सो लेट अस एनालाइज दिस एग्जाम्पल। आई हैव रिटन हियर वन एग्जाम्पल अंडर द कॉलम सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट कब लिखी जाती है, जब किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कंपनी में कोई वैकेंसी है, चाहे उनको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, चाहे उनको टाइपराइटर एक टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, ओके, व्हाटएवर। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट हियर। We take the name of the school here, Guru Tegh Bahadur Public School. Clear? So suppose there is vacancy of PGT English in the particular school Guru Tegh Bahadur Public School. Suppose करो कि गुरु तेग बहादुर स्कूल में PGT English चाहिए। PGT means post graduate. Clear? With master degree MA. Clear? They want a PGT English to teach the classes 11th and 12th. So the principal of the school will put an advertisement in the newspaper. Clear? So we do not have to use the complete and lengthy sentences. ऐसी advertisements में हमने लंबे और complete sentence नहीं use करने. We have to write them in short. हमने उसको short में लिखना है. Clear? क्योंकि word limit जितनी हम words ज़्यादा लिखेंगे उतनी उसकी cost ज़्यादा होगी, तो हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है मिनिमम वर्ड्स में। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल पटियाला रिक्वायर्स मींस नीड्स 1 PGT इंग्लिश। देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को भी मेंशन किया और उसके नंबर को भी मेंशन किया कि कितनी वैकेंसीज हैं। एक ही वैकेंसी है स्कूल में, एक ही PGT इंग्लिश चाहिए। रिक्वायर्स 1 PGT इंग्लिश, कौन सी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, to teach 11th and 12th classes. Clear? Applicant must be MA B.Ed. Means the candidate who is going to apply for the post, he must possess. उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, MA in particular subject. अगर वो इंग्लिश का PGT लगना चाहता है, PGT इंग्लिश की पोस्ट फिल करना चाहता है, तो वो MA इंग्लिश होना चाहिए। Clear? Along with the professional degree, that is must for a teacher, B.Ed. Okay? With at least 3 years of experience. और कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मीन टू से मैक्सिमम हो सकता है इससे ज़्यादा, 5 years का हो सकता है, 10 years का हो सकता है, बट 3 years इज मैंडेटरी। क्लियर। As PGT in a reputed CBSE school, mean to say the candidate who wants to apply for the post, he must have the 3 years experience of teaching as a PGT English in a well reputed CBSE school.
उसको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी नेगोटिएबल, नेगोटिएबल मीन्स दैट द सैलरी विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, एट द इंटरव्यू एज पर द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर? जो सैलरी है वो नेगोटिएबल बताई गई है। इट मीन्स कि जो सैलरी होगी वो जब फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगी तब डिसाइड की जाएगी। क्लियर? ओके। सेंड एप्लीकेशन विद बायोडाटा टू, जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन विद बायोडाटा, विद रिज्यूम। बायोडाटा वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू राइट ए रिज्यूम in my further videos when I will teach you the letter writing, the applications writing, then I will teach you how to write a biodata. Clear? So जो application candidates हैं वो application send करेंगे biodata के साथ, और कहाँ पे send करनी है उनको? The email ID is given, principal gurtegbahadur@gmail.com. So students, it is very easy, okay, to write an advertisement, classified advertisement under the column situation vacant. There are many other columns too, like situation wanted, to let, for sale, lost and found, bride wanted, groom wanted. वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको सब सिखाऊंगी, बिकॉज अगर एक ही दिन में मैं आपको सभी सिखा दूंगी तो एक तो वीडियो लेंथी हो जाएगी एंड सेकेंडली यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो सिचुएशन वैकेंट के अंडर राइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को वी हैव टू कीप इन माइंड दीज की पॉइंट्स। नंबर 1, नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ वैकेंसी और इट्स नंबर, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, देन योर प्रेफरेंसेस, दैट विच एज ग्रुप कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, whether you want male or female employee. Clear? Salary. Thereafter, application process, what would be the process of sending applications, then your contact number. Clear students? So I hope that you all have got today's lesson. You all have understood how to write a classified advertisement under the column situation vacant. Okay, don't forget to write the heading in the capital letters. Clear students? Thank you very much.